It was good, ma'am. It was good, and we hope that the new year Yes. will be good for everybody. है ना? Yes. Everybody will be healthy, everybody will be normal state of mind, and ये सब अपना तुम सबको ऐसे रोज देखे हम लोग डिपार्टमेंट में, है ना? ऐसा हम बहुत जल्द हाँ चाहते मैम, हैं. Yes, हम ma'am. भी विश कर रहे हैं जल्द से कॉलेज खुल जाए. यस, आप लोगों के लिए तो वो देखना भी एक पहली बार होगा. जो यहाँ के हैं उनको तो पता है, बट दोज हु आर न्यू, उनके लिए तो नया है. मैडम हैज ज्वाइन. Today, madam is going to orient you about your assignment. So keep a paper, pen ready with you. I'll upload that document once, madam. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. Good ma'am. Good afternoon, Good Good afternoon. afternoon, ma'am. As you were waiting for so much for your assignment, and you said last time that you had come to receive your assignment. Today, me and Jyotsna ma'am are going to assign you your assignment for understanding disciplines and subject. I was not able to join from my laptop. I'm still trying. There is some problem, but I've joined in from the mobile right now. Uh, so, Madam, will you be able to show the file that we have made? Actually, I've made PPT, but then I'm not able to join in from this laptop. Meanwhile, we have. I can share the screen, and what I'm doing is I will share that file also with all of you
अभी अपलोड कर रही हूँ. Actually, I'm simultaneously, Jaya, doing that approval work also. So Okay, if I okay, okay, share the ma'am. screen, what will happen? Maybe शायद Yeah, चला जाए, ऐसा कुछ होगा. But अभी मैं कर हाँ, रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं okay. है, अभी तो कर ही सकते हैं. Actually, we have discussed and found 36 topics for you all to choose among yourself, and this assignment would be done in pairs. Okay, so we are not going to make you into pairs. We want that you find your own pair. However, we have divided you into almost three categories. One is a group of students who have opted for the method mathematics. Okay, and another is the students who don't have mathematics as their subject, but they have science as their subject. The list we would be uploading on Teams so that you can see. And the third list is wherein the social science students as well as the language method students would be there. Okay. So what you have to do is there are 36 topics. So those who have taken mathematics as your method, you have to choose from any from all this. There are 17 topics in mathematics, and out of the 17 topics you have to select any one and you have to work on that for your assignment. Of course you will be pairing yourself, that I'll tell you when see the it is already seen, the topics are already seen. If you can ma'am, can it be scrolled down? Now I think my laptop will is also open. It's already working. I don't know why it's not opening. Jyotsna ma'am, can we see the first list, the first assignment, mathematics related assignment? Yeah, now I am fully with you. चलो मेरा वो काम खत्म हो गया जो डिपार्टमेंट के साथ कर रही मैम थी. पहला वाला दिखा देंगे आप, फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट? ये डॉक्यूमेंट में जो पहला वाला है ना मैम, मैथ्स रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो. हाँ ये रहा. अभी तो 35 दिख रहा है, 35th दिख रहा है. अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने जो शेयर किया वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है. स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन उसमें 35th टॉपिक दिख रहा है. अभी मैंने फिर से शुरू किया. अभी देखो क्या दिख रहा है. अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है. बड़ा करूं थोड़ा? मैंने अपने लिए बड़ा कर दिया है, लेकिन आई थिंक इट इज ओके, इट्स सीन. चलो अभी या डन. थैंक यू मैम. तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी मैथमेटिक्स मेथड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यू आर 30, तो उन लोगों को ये जो 17 टॉपिक्स दिए हैं उसमें से आप लोगों को कोई भी एक टॉपिक लेना है. मोस्टली जो भी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के वो रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज हैं. जैसे आप पढ़ रहे हो, यू हैव डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बाय ग्रीक्स, Babylonian mathematics, how the Babylonians developed mathematics. They had some alphabets and they had some signs which they used to depict certain mathematical figures. Then all these things you have to write in a chronological order and you have to present as a assignment. Then you have a development of mathematics by Egyptians. You know, Egyptians have contributed a lot in development of geometry, and how they have contributed you have to show through your assignment. Then development of mathematics by Romans, development of mathematics by Chinese. Then the Hindus also have contributed a lot to the development of mathematics. Maybe you'll be writing about the scriptures, and you'll be writing about how during the Gurukul period also there were a lot of things that were contributed by the mathematicians that time, and they could come up with some mathematical signs and all.
So those things you have to show. And even the Hindu philosophy also has certain things which are related to mathematics. So that you need to find out and you have to put in the assignment. Then you have development of mathematics in the Islamic Empire and then in Europe also. If you can see carefully, we have numbered the assignments as 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. So when we will give you the assignment, you have to write. आपको हम लिस्ट भी देंगे आपके नाम का. उसके सामने सपोज आपका नाम विवेक है, तो विवेक के सामने आपको लिखना है कि इनमें से कौन सा असाइनमेंट नंबर आप करोगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है. एंड आपके साथ दूसरा कोई, फॉर एग्जाम्पल विवेक ने सेकेंड नंबर का बेबीलोनियन मैथमेटिक्स पे उसने असाइनमेंट चूज किया, और दूसरा एक स्टूडेंट है उसने भी सेकेंड नंबर का ही चूज किया. देन दे बोथ विल बिकम पेयर्स. वो लोग दोनों साथ में काम करेंगे और एक असाइनमेंट बनाकर सबमिट करेंगे. ठीक है, इट इज लाइक दैट. एंड देन यू हैव महावीरा एंड Aryabhatta also contributed to the development of mathematics, which is again a history of mathematics, and you have lot of material on this which you will get online also, and you can use that for writing the assignment. Basically writing about the history of how mathematics has been developed from all these countries or all these scriptures or all these religious empires like Hindus, Islams, and etc. Ma'am, can we have the next page? Yeah, sure. Is it visible now? Yeah, yes, ma'am. Yes. Then you have the 11th assignment. You can see how Bhaskara 1 had contributed to the development of mathematics. So basically, when you talk about people like Mahavira or Bhaskara, you have to say what specifically they contributed to the development of mathematics and how it was. That is how you are going to write about in the assignment. Then you have Bhaskara 2, Brahmagupta, Srinivasa, Ramanujan, Euclid, Pythagoras, as you know, is a great mathematician who has contributed immensely in geometry. Then Gauss. So these are the 17 topics from which the students who have opted for mathematics method should choose their assignment. Okay. About the pairing and all, we'll have a brief outlay by Jyotsna ma'am later on. Then next, if you see, 18th topic is from science. Okay. So you have to basically the topics related to science are from 18 to 25, and these topics are related to the development of science. As we had in mathematics also, the history related to the development of mathematics, here also you have to write about the development of science in different era, like in the ancient period, in the pre-Vedic period, development of science in the Vedic period, then how science had developed in the medieval period. Maybe you'll have something from the foreign things also when you write about the medieval period, or else you can stick on to writing about the Indian things only. Then development of modern science, how the modern science came into being, and then development of science in modern period, modern postmodern time. Then development of science in contemporary perspective. Contemporary, as you know, you have been learning about contemporary Indian education. Contemporary is about the present times, how the development of science is taking place and what is its contribution. So that is what you should write in the assignment. Then Karl Popper, how he had a scientific paradigm and how he led to the development of science. How his the scientific paradigm that he gave led to the development of science. That I think you should that is what you should describe in your assignment. Madam, the next one. Yeah. The 26th one is related, if you see 26, 27, 28 and 29. These are the
topics which are related to language. So the language students can take up these topics, any one of these topics. These topics, like first one is different views and antecedents on language development of a child. Okay, you will get lot of views of different psychologists on the web who are talking about how the language development actually takes place in the child. You know, everyone has their own viewpoint. So what you can do is you can write write the views from the different psychologists, and maybe you can also say that what you agree to and why you agree to that. So that can be a point how you can present this assignment. Okay. Then the 27th wala hai history of language development in the world imperial knowledge, world imperial tongues, linguistic evolution, Latin and German. If you see, अगर language का आप origin देखोगे या ये जो linguistic का evolution देखोगे, तो Greek और Latin का बहुत ज्यादा उसमें contribution है. तो उनका जो contribution है वो आपको इसमें लिखना है. Basically आपको world में लैंग्वेज एवोल्यूशन के लिए क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट हुई थी वो सब कुछ आपको इस असाइनमेंट में लिखना होगा. और ज्यादा फोकस आपको लैटिन और जर्मन पे रखना होगा क्योंकि वो लोग एक एंशिएंट वो है एंशिएंट बैकग्राउंड देते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज. फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम द 5th सेंचुरी. अब 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा एम्फोसिस है और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में उसका डेवलपमेंट पैरेलली चल रहा था. तो इसके बारे में भी आपको काफी सारे नोट्स और आर्टिकल्स मिलेंगे वेबसाइट पे जिसको आप यूज कर सकते हो. और लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे रेस के साथ लिंक्ड है उसको आप बता सकते हो. और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कैसे डेवलप हुए, जो डिफरेंट रेसेस हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पे ST/SCs हैं, उन लोगों के जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वैसे फॉरेन कंट्रीज में रेसेस होते हैं. तो उन लोगों का अपना एक लैंग्वेज होता है. जैसे ट्राइब्स का लैंग्वेज होता है इंडिया में, वैसे रेसेस का अपना लैंग्वेज होता है. तो वो लोगों ने लैंग्वेज कैसे डेवलप किया, लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस था उनके रेस के लिए, वो सारी चीजें आप इस असाइनमेंट में लिख सकते हो. फिर दूसरा है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया एंड रिलेटेड इश्यूज. अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देखोगे, इंडियन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, तो आपको उसमें लैंग्वेज रिलेटेड भी काफी सारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा. तो उसमें आप उस डिस्क्रिप्शन को, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या बोला है वो लिख सकते हो. और फिर उसके रिलेटेड इश्यूज भी काफी सारे डिस्कस किए हुए हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में आपको मिलेंगे. और इसके लिए आप जो पोजीशन पेपर्स हैं ऑन लैंग्वेज उसको भी देख सकते हो NCERT के वेबसाइट पे. ठीक है. फिर जो लास्ट वाला है वो है इमर्जेंस ऑफ सोशल साइंस एंड द एसोसिएटेड डिसिप्लिन्स. सोशल साइंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं. जो सोशल साइंस मेथड वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं इसमें से. यहाँ 30th असाइनमेंट से ये शुरू हो रहा है. ये है इज एजुकेशन अ सोशल साइंस, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. तो हम लोग अभी फर्स्ट क्लास में ही वो डिस्कस कर रहे थे कि सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन क्यों है. तो एजुकेशन अगर एक सोशल साइंस है कि नहीं वो आपको डिस्कस करना है. इसमें आप फॉर या अगेंस्ट भी हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको अपना रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करना है. आपने जो फर्स्ट यूनिट पानीग्राही सर सिखा रहे हैं उसमें आपने सीखा होगा कि डिसिप्लिन क्या है, और आपने फर्स्ट क्लास में मेरे साथ भी काफी कुछ शेयर किया कि डिसिप्लिन क्या है. तो एजुकेशन एज अ सोशल साइंस है कि नहीं वो आपको जस्टिफाई करना है या नहीं. अगर आप बोलते हो हाँ तो क्यों हाँ बोलते हो, अगर आप ना बोलते हो तो आप क्यों ना बोलते हो, उसका जस्टिफिकेशन आपको लिखना है. फिर सेकेंड वाला है इज एजुकेशन अ डिसिप्लिन. इसमें आपको वो डिसिप्लिन कैसे है वो आपको प्रूव करना है. अगर आप बोलते हो हाँ एजुकेशन डिसिप्लिन है तो कैसे डिसिप्लिन है,
क्यों आप समझते हो कि वो डिसिप्लिन है, वो लिखना है। अगर आप ये समझते हो कि एजुकेशन डिसिप्लिन नहीं है, वो सिर्फ ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसको हम डिसिप्लिनरी स्टेटस नहीं दे सकते, तो आप क्यों उसको डिसिप्लिनरी स्टेटस नहीं दे सकते, वो आपको जस्टिफाई करना है। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस डेवलपमेंट। सोशल साइंस का भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। पुराने जमाने में पहले लोग सोशल साइंस को बहुत मानते नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि जो फिलोसोफर्स के थॉट्स हैं उसमें से सोशल साइंस डेवलप हुआ है। तो पहले फिलोसफी से साइंस आया, और साइंस के कॉन्सेप्ट्स में से कुछ साइंटिस्ट जो थे वो लोग फिलोसोफर्स भी थे, और उन लोगों ने सोशल साइंस को इम्पोर्टेंस दिया। यानी ह्यूमन रिलेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, उसके बारे में वो लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया इन अ साइंटिफिक मैनर, रिसर्च करते हुए। तो फिर स्लोली सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन एस्टेब्लिश होने लगा और वो डेवलप होने लगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कैसे फिलोसोफर्स के थॉट्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है उन्होंने कैसे सोशल साइंस को डेवलप करने में हेल्प किया, वो आपको लिखना होगा असाइनमेंट में। ठीक है, अगर आप ये चूज करते हो तो। दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे अगर आप ये टॉपिक लेते हो तो स्पेसिफिकली सिर्फ फिलोसोफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस के लिए, उसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है विच डिसिप्लिन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड टू एजुकेशन एंड व्हाई। अगर आप एजुकेशन को, अगर आप ये टॉपिक लेते हो और एजुकेशन को डिसिप्लिन मानते हो, तो कुछ सोशल साइंसेस हैं जो दिस एजुकेशन से क्लोजली रिलेटेड हैं, जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिर फिलॉसफी है। तो ये सारे जो डिसिप्लिन्स है वो, और इसके अलावा भी दूसरे डिसिप्लिन्स भी होंगे, आप जब आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो एजुकेशन से क्लोजली रिलेटेड जो डिसिप्लिन्स है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, और वो कैसे एसोसिएटेड है एजुकेशन से, वो एजुकेशन को डेवलप करने में कैसे मदद करते हैं, उसको आपको लिखना है इस असाइनमेंट में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अ सोशल टॉपिक एंड एक्सप्लेन हाउ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आपको सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक में से कोई भी एक टॉपिक चूज करना है, और आपको ये बताना है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं आप उनको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वैलीज एंड अगर आप ज्योग्राफी का कोई टॉपिक लेते हो और कोई ज्योग्राफिकल एरिया स्पेसिफिकली चूज किया है, सपोज कोई हिली एरिया चूज किया है, ठीक है, तो वहां पे क्या साइंस का नॉलेज, आप वो हिली एरिया के बारे में जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो साथ में क्या आप साइंस का भी कुछ कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ा सकते हो, क्या उसमें मैथ्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हो। अगर हिली एरिया है और वहां स्टेप फार्मिंग हो रहा है तो वो कैसे टिल किया जाता है, उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स आ सकते हैं। फिर कितने कितने मेजरमेंट्स यूज कर सकते हैं स्टेप के लिए, मतलब वो स्टेप का कोई एक वो तो होगा ना कि वो कितना लंबा होना चाहिए हर स्टेप, और कितना ब्रॉड होना चाहिए। तो उसके लिए आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हो, ब्रेड्थ एंड विड्थ के बारे में, ब्रेड्थ एंड लेंथ के बारे में। तो आपको कोई भी एक टॉपिक सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक में से लेना है, स्टूडेंट के 9th या 10th के टेक्स्ट बुक में से, 8th से भी ले सकते हो, और फिर आपको बताना है कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज उसमें यूज हो सकता है वो टॉपिक पढ़ाने के लिए। बेसिकली गिविंग एन इंटरडिसिप्लिनरी outlook or interdisciplinary look to the way you are teaching the topic of social science. Okay. Madam, the last one. Yeah, this is the last one, 36th one. ये टॉपिक हम लोग देते थे एज एन इंडिपेंडेंट असाइनमेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन इस बार हम लोगों ने कुछ चीजें और भी ऐड की हैं, तो टोटल 36 हो गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स सोशल साइंस, लैंग्वेज या साइंस में हैं, वो लोग इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ टॉपिक ऑफ स्टडी। इसमें भी वही करना है। इसमें आपको जैसे सोशल साइंस का जो लास्ट टॉपिक था 35th टॉपिक में मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस के कोई भी टॉपिक को टेक्स्ट बुक में से लेना है 8th, 9th या 10th के बुक में से, और उसको आप इन अलग अलग डिसिप्लिन के नॉलेज से कैसे पढ़ा सकते हो, या अलग अलग डिसिप्लिन का नॉलेज वो टॉपिक पढ़ाने में कैसे
कैसे हेल्प कर सकता है वो बताना है। वैसे ही ये वाला जो 36 टॉपिक है, इसमें आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में से, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या लैंग्वेज हो, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, किसी में से भी आपको एक टॉपिक लेना है और उसमें आप दूसरे डिसिप्लिन, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई साइंस का टॉपिक लिया है तो उसमें सोशल साइंस का कौन सा पर्सपेक्टिव आप ऐड कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स का कौन सा पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हो, या आप लैंग्वेज का कौन सा पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हो पढ़ाते समय, वो आपको लिखना है। ठीक है, और वो लिखने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक आउटलाइन भी दिया है। इफ यू कैन सी डाउन, टॉपिक, कंटेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, learning outcome, a brief description about the topic, which disciplinary knowledge will be utilized, and while describing ensure the reader comprehends the topic। तो यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपने वो वाला, ये बहुत छोटे क्लास का एग्जाम्पल है, इसीलिए दे रही हूँ ताकि सब लोग समझ सके, ठीक है, लेकिन 8, 9, 10th में शायद दूसरे टॉपिक्स आएंगे। तो अगर सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस सिखाने वाले हो, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर होगा उसमें बहुत सारा कंटेंट होगा, यानी सब टॉपिक्स भी होंगे। तो आपको जो कंटेंट एनालिसिस चार्ट बनाओगे वहां पे आपको लिखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी सब टॉपिक्स हैं उसमें आप कहाँ पे साइंस यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए, कहाँ पे सोशल साइंस का यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम सिखा रहे हो, ठीक है, और वो प्रॉब्लम के अंदर आप कोई सोशल वैल्यू भी बता सकते हो, ठीक है, जैसे कि कोई दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड ने अपना पैसा दूसरे फ्रेंड के पास रखा और वो फॉरेन कंट्री में चला गया, ठीक है, और वापस आता है तो वो जो फ्रेंड था जिसके पास पैसे रख के गया है, उसने वो पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा लिया, और फिर जब फ्रेंड फॉरेन से वापस आता है तो उसको एक्चुअल अमाउंट देता है, लेकिन जो प्रॉफिट उसको मिला है उसमें से वो उसको देता नहीं है, ठीक है। तो जैसे सोशल साइंस और लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोग यूजुअली बात करते हैं वैल्यू डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आप ये तो दे ही सकते हो कि जो फ्रेंड इंडिया में था जिसके पास पैसा था, उसने कैसे उसको इन्वेस्ट किया और उसने कितना प्रॉफिट कमाया। तो वो प्रॉफिट का जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उनको ये बताएंगे कि दूसरा फ्रेंड वापस आया और उसने प्रॉफिट शेयर नहीं किया, सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ही दिया उस फ्रेंड को जो वो उसके पास रख कर गया था, तो जब हम ये शेयर करेंगे तो वी आर एक्चुअली टेलिंग देम कि यहाँ पे शेयरिंग की भावना और क्या बोलते हैं, किसी का जो हेल्प मिला है उसके हेल्प यूज करके फिर उसको डिच करने वाली भावना ज्यादा दिखती है, क्योंकि पहले वाले फ्रेंड ने दूसरे वाले फ्रेंड के पैसे से प्रॉफिट तो कमा लिया लेकिन उस प्रॉफिट को उसके साथ शेयर नहीं किया जब वो वापस आया, ठीक है। तो ये एक वैल्यू वाली बात होती है जो हम लैंग्वेज और सोशल साइंस से डेवलप करते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस चार्ट में आपको लिखना है कि टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे लिखना है कि सोशल साइंस रिलेटेड आप क्या पढ़ाओगे या लैंग्वेज रिलेटेड आप क्या पढ़ाओगे, ठीक है, वेयर लैंग्वेज कैन बी यूज या वेयर साइंस कैन बी यूज। इस तरीके से आपको कंटेंट एनालिसिस चार्ट बनाना है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ टेबल or it can be in form of a flow chart. Okay, if you choose this and you have any problem, you can definitely ask me, I'll be helping you out. फिर ऑब्जेक्टिव्स, वो जो टॉपिक आपने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। आप उस प्रॉफिट एंड लॉस से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है वो नहीं सिखाओगे, उसके साथ कुछ सोशल वैल्यूज भी सिखाने वाले हो, तो वो भी आपके ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है, ठीक है। देन लर्निंग आउटकम, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि स्टूडेंट्स क्या क्या सीखेंगे। जैसे हम स्टूडेंट्स को कभी स्टोरी सुनाते हैं तो ऐसा समझते हैं ना कि दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सिखाओगे तो उसमें से क्या आउटकम आएगा, स्टूडेंट्स क्या सीख पाएंगे। एक तो सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है, वो सीखेंगे। दूसरा, वो लोग वैल्यूज सीखेंगे कि फ्रेंड्स जो होते हैं उनको आपस में शेयर करके रहना चाहिए, एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहिए। ये एक वैल्यू मैंने जो एग्जांपल दिया उससे आया। वैसे आप बहुत कुछ सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है। देन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द टॉपिक। अब टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर और क्या क्या
डिस्क्रिप्शन है आपका, मतलब सब टॉपिक्स क्या है और आप क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हो, सम्स करवाने वाले हो कि नहीं, या फिर आप उन लोगों को कैलकुलेशन करवाने वाले हो कि नहीं, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको लिखनी होगी। विच डिसिप्लिनरी नॉलेज विल बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, स्टेट देम। कौन से डिसिप्लिन, जरूरी नहीं है कि एक टॉपिक लोगे तो उसमें आपके सारे डिसिप्लिन आ जाएंगे, साइंस भी आ जाएगा, सोशल साइंस आ जाएगा, लैंग्वेज भी आ जाएगा। हो सकता है कि कोई दो डिसिप्लिन ही आए, लेकिन जो भी डिसिप्लिन का नॉलेज आप यूज करने वाले हो उस टॉपिक को समझाने के लिए, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें मैथमेटिक्स भी यूज हो रहा है और सोशल साइंस भी यूज हो रहा है, सोशल वैल्यूज डेवलप होने की बात है, तो ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो। देन डेवलप अ राइट अप, you have to write that how you are going to actually teach them this profit and loss, or profit and loss is just an example, जो भी टॉपिक आपने चूज किया है वो, ओके। एंड at the end, while describing, ensure the reader comprehends the topic. At the end आपको ensure करना है, summarize करके, कि जो actual topic है, जिस aim से सिखाया गया, आपके जो objectives है वो अचीव हुए हैं कि नहीं, उन लोगों को वो समझ आया है कि नहीं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम लोगों ने जो 35 तक के टॉपिक्स दिए हैं, ये 36, ये जो मैंने ये जो पॉइंट्स दिए हैं, टॉपिक, कंटेंट एनालिसिस, ये 36 टॉपिक के लिए है। 35 तक का जो टॉपिक है उसके लिए हम लोगों ने कोई स्ट्रक्चर नहीं रखा है कि आप रिपोर्ट कैसे देना है। वो रिपोर्ट आप अपने हिसाब से और उसका स्ट्रक्चर भी आप अपने हिसाब से डिजाइन कर बना सकते हो, ठीक है। एज यू फील दैट इट शुड बी प्रेजेंटेड, you should write the report and give, okay. You can discuss with your peers, and if you have any problem and you want to ask anything, you can always talk to any of the teachers, and I would be always there to help you, okay. Yeah. And this is the first page that assignment जब आप submit करोगे तो soft copy में submit करोगे, और उसका सॉफ्ट कॉपी रिटेन रखना, हम लोग आपसे मांग भी सकते हैं हार्ड कॉपी जब डिपार्टमेंट खुलेगा तब, ठीक है। तो सब जो ऊपर वाला पेज है उसमें आपको ये सारी चीजें दिखानी है, लिखनी है, ये मैडम आपके साथ शेयर करेंगे टीम्स में, तब आपको ये दिख जाएगा। आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसका कोड लिखना है, डिपार्टमेंट का नाम, और फिर PRN नंबर, आपका मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स वाले जो 17 टॉपिक्स है उसी में से चूज करना है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपना मेथड ऑफ टीचिंग भी लिखें, और ये सबमिट भी करना है आपको। सब मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स प्रोफेसर सतीश पाठक को सबमिट करेंगे, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स ये सबमिशन आपका मूडल पे होगा, इसीलिए वो रिस्पेक्टिव टीचर उसको देखकर मार्क्स असाइन कर देगा आपको। मतलब किसी को स्पेसिफिकली किसी को ईमेल करने की जरूरत नहीं है, मूडल पे ही सबमिट करना है, एंड सबमिटेड टू करके आपको लिखना है। अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आप प्रोफेसर सतीश पाठक का लिख सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट हो तो और ज्योत्सना मैम का नाम लिख सकते आप, इंटरडिसिप्लिनरी वाला भी अगर साइंस टॉपिक लेते हैं तो आप ज्योत्सना मैम का नाम लिख सकते हैं, और बाकी सब मेरा नाम लिखकर सबमिट कर सकते हैं, ओके। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। Now I hand over to Jyotsna ma'am. She has certain instructions to be given regarding the assignment submission. Ma'am, we can't hear you. आपकी बात है। अभी सुनाई दे रही हो? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so what I have said कि एक तो one point I wanted to add in this interdisciplinary वाला topic, that it is not that you can go out and select some abstract topic. You have to select some content related topic from the school textbook only, and you select a general topic. Say for example, I think I gave example in this class only about the concept of density and how we can relate it with the population density. Then you can compare the density with the lifestyle. You can compare the lifestyle of the people, और उसमें
वेदर का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, जो लोग सपोज इफ वी आर स्टेइंग इन इंडिया, so the kind of food we are taking and the kind of plantations and habitats are available has a direct link with our lifestyle, our you can say that health, and you can directly link it with the economy also. Then you can move on to the you can say the dressing style of ours, and then you can link it with the festivals we are celebrating. So from that simple topic of lifestyle, you can definitely discuss it from the various angles. So like that you have to select the topic. Fine. Now related to your submission, see, when you are submitting your topic, what you have to do is why these names are written, that these are the 3 people who are going to assess your assignment. Even if you will not write the name of the to whom submitted, will okay, but you will not forget to write your PRN numbers, method of teaching, and name of the members in the pair. The assignment submission will be individually. I'll show you with in a minute कि कैसे और कहाँ करना है submit. Then this is a document. मैं जैसे ही file upload करूँगी, I can even share this link right now also. This is a link. The moment you will click this link, you will be directed here. अभी वहाँ लेके जाएगा ये मुझे. हाँ, this is the topic, and then I have put like this. So what you can do is, I'm sharing this link with one of you I'm writing it in the chat box only. You can click that link and you can open the document and you can write there. अभी अपना Microsoft टीम कहाँ है? ये रहा टीम का चैट बॉक्स. I have pasted this link. You can click it. You can go here in the assignment directly. Now I'm closing this assignment and sharing भी बंद हो गया शायद. Okay. So now you can see, you can go here and you can scroll down and you can write inside. Say for example, कोई अगर अंदर आके लिखेगा तो अभी दिखेगा. Suppose somebody has joined. दिख रहा है? जया, is it visible? कोई अंदर आया ग्रुप में? Yes, madam, it is visible. हाँ, तो अभी अंदर आके आपको लिख देना है. अगर आपको लिखना नहीं आता है, you can take help of your friend also. And this is how you have to fill up this. You can start doing that now. उसके पहले दूसरा भी एक चीज बता दूं. असाइनमेंट आपको Moodle पे सबमिट करना है. Moodle में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनके ऑलरेडी देयर नेम्स आर देयर इन द Moodle, बट इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन योर एनरोलमेंट हैज नॉट येट बीन डन. वो मैं कर लूंगी. उसके बाद I will orient you also, but let me show you one की assignment submission जो है वो आपको, this is our MSU Moodle and this is how you have to go to the faculty. And if you go to B.Ed, in B.Ed I'll take you to the second year because I have one more course over there. आपका submission होगा कहीं और. See, this is how you will be getting assignment and the moment you will click it, you have to submit. जैसे ये ऐसा आएगा, इसको क्लिक करोगे आप तो ये तो मेरा टीचर का व्यू है. अगर मैं आपको स्टूडेंट व्यू दिखाऊं, स्विच रोल टू स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे सबमिशन का ऑप्शन आएगा. इसकी डेडलाइन चली गई है इसीलिए आपको नहीं दिखेगा. तो अभी आपका कोर्स कहाँ है? So you have to go to B.Ed first, साइकोलॉजी में से B.Ed कोर्स एजुकेशन. आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप सीधा अपने कोर्स में ही चले जाओगे जहां जहां पे भी आपका कोर्सेस. अब देखो यहाँ पे भी अपना कोर्स है असेसमेंट, अरे UDS, उसको आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको हम असाइनमेंट अपलोड कर देंगे.
अभी आपका क्योंकि एनरोलमेंट नहीं हुआ है, आपको ये कोर्स नहीं दिखेगा। जैसे ही आपको एनरोलमेंट हो जाएगा, आपको इसी जगह पे ये कोर्स दिखने लगेगा। तो वन डे आई विल ओरिएंट यू हाउ टू यूज दिस मूडल एंड हाउ टू सबमिट असाइनमेंट ऑन मूडल। अभी क्योंकि आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ है, बट दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट। मैं इसकी लिंक भी ये डॉक्यूमेंट में ऐड कर रही हूँ, सो दैट जब भी आपको सबमिशन करना हो, you can go to this document and you can definitely submit. मैंने ये भी डाल दिया। अभी असाइनमेंट के टॉपिक्स ऐड करना शुरू कर दो आप। और दूसरा 36 के बाद जो होगा आपका, उसके लिए आपको एक एक टॉपिक ऐड करना है। वो बताया ना जया इनको? 36 के बाद एक एक टॉपिक। जैसे 36 में इंटरडिसिप्लिनरी के लिए आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, ठीक है, तो यू विल बी टेलिंग अस द टॉपिक। यू कैन टेक योर टाइम। आज आप ये देख लो एक बार डॉक्यूमेंट, जिनका कंफर्म है मैथ्स के जो बच्चे हैं उनके लिए वो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं। आप अंदर जाके लिखना शुरू कर सकते हो। मुझे कोई लिख के बताओ, कोई लिख पाया? मैंने ओपन तो रखा है। किसी को दिक्कत है तो मुझे पूछो अभी। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, तो एक बार बोलना। जया लिख लें क्या हम? हाँ मैम, लिख लेते हैं, है ना? तो चैट बॉक्स में लिखो। जया, you can enter the document if you want to enter, या you note down right now and then you can later on add. Yeah, I'll note down because my laptop is not yet opened. मतलब No चल ही problem. रहा है उसका प्रोसेस, पता नहीं क्यों। No problem. Yeah. सो आपको करना क्या है, आपको ये लिंक जो मैंने शेयर करा है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने से आप गूगल डॉक में चले जाओगे। अगर आपके मोबाइल में गूगल डॉक्यूमेंट का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो इट आस्क यू टू डाउनलोड। नो प्रॉब्लम, डाउनलोड इट। बहुत कम एमबी का है। उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाओगे। उसको एक्सेस करने से आपको अंदर लिखने का प्रोविजन है। तो आपको जो टॉपिक के सामने अपना नाम लिखना है वो लिख दीजिए। दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो अंदर एंट्री हो गई, वो फाइनल एंट्री। तो चैट बॉक्स में लिखना है तो भी अंदर तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो वो बेटर है कि आप अंदर डॉक्यूमेंट में जाके लिखो। सो इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो अंदर जाके लिख लिया, इसका मतलब ये हुआ आपका फाइनल हो गया। फिर शाम को जया मैडम देख लेंगे कि क्या कितने बच्चों ने अपना सिलेक्शन नहीं दिया है। अच्छा, तुमने लिखा दीपक, दीपा एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ, स्क्रीन शेयर है। और आप लोग अपना नाम ही लिखो क्योंकि अभी आप लोगों के पास पीआरएन नंबर्स भी नहीं है और रोल नंबर्स भी नहीं है। दीपा, प्लीज राइट योर फुल नेम। Yes, ma'am. बिकॉज वी डोंट नो, आपके क्लास में 3-4 दीपा हो सकती है, राइट? देखो, जो दूसरे लोगों को दिख रहा है, शी इज राइटिंग। Yes, ma'am. दिख रहा है। दीपा। Ma'am, I have written. हाँ जया, अभी दूसरा जो डॉक्यूमेंट यू शेयर्ड विथ मी ना, उसमें अगर क्या करोगे आप, वो बच्चों को बाद में बोल देना। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सपोज दीपा ने यहाँ पे दीपा कुमारी लिखा 16 नंबर, तो आई थिंक दैट वी कैन डू। जया, इनको नहीं देंगे तो हमारा इजी हो जाएगा, कर लेंगे मैम, है ना? दैट वुड बी ठीक है। या अभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। जो लोग इंटरडिसिप्लिनरी ले रहे हैं, अरे इसमें से टॉपिक कहाँ चला गया 27 नंबर का? क्या है 27 नंबर में टॉपिक? 27 एक मिनट में देख लेती हूँ। चलो, मूडल वाला समझ में आ गया आप लोगों को? तो मूडल पे सबमिट करना है आपको असाइनमेंट। फाइन, ये अभी बंद कर दीजिए।
ये ड्राइव भी बंद। अभी हमको इसको भी बंद, इसको भी बंद, इसको भी बंद, ये वाला। बोलूं क्या 27 नंबर का टॉपिक? बस मैं पहुंच गई वहां। अभी ये रीडिंग वाला व्यू से मुझे एग्जिट करना है। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यही है ना? हाँ हाँ, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। कितनी सारे ड्राइव एक साथ खोल के रखी है। हाँ। चलो डन, आ गया। मैम, यस I have one doubt. ये जो टॉपिक 18 है, that is development of science in ancient period, that is just restricted to India or overall नहीं, वहां around पे the world? मैंने इंडिया स्पेसिफाई नहीं किया है। Yes, ma'am. हाँ? Okay. ये सी स्टूडेंट्स, ये एक चीज ध्यान रखो, आपको इंटरडिसिप्लिनरी वाला ले रहे हो ना, तो राइट हियर फर्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी, उसके बाद अपना टॉपिक लिखो, सो दैट द टॉपिक विल नॉट बी रिपीटेड। फाइन। अभी अगर टॉपिक नहीं लिखा है, फाइनल नहीं किया है, तो एक बार इंटरडिसिप्लिनरी लिख के अपनी पेयर बना दो। उसके बाद सपोज कोई बंदा, यहाँ पे मैं कर ही देती हूँ, यहाँ पे 50 टॉपिक करने पड़ेंगे हमको, 37, 38, and one of you, if you are good in this, मैंने आपको एक्सेस दिया है, एडिट एक्सेस। ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। आई नो दैट यू हैव नेक्स्ट क्लास, so once you finish you can leave the class, no problem, but then सबमिशन डेट कब है? सबमिशन डेट बताया नहीं जाए इनको? 31st January. नहीं मैम, Submission date is 30th of Jan. That is what is written. बस चलो, बहुत अच्छा काम किया। somebody is writing for me, लिखो लिखो। मैम, जो इंटरडिसिप्लिनरी वाला 36 टॉपिक है, उसमें पूरा रो खाली है, तो उसमें ही हमको नेम लिखना है अपना। ये जो 36 है ना टॉपिक इंटरडिसिप्लिनरी, उसमें नाम लिख दिए तुम लोगों ने, हो गया। अभी तुमको क्या करना है, ये नीचे सारे इंटरडिसिप्लिनरी ही है, बट एवरीबडी हैज टू स्पेसिफाई द टॉपिक ऑल्सो हियर। आज आप सिर्फ लिख दो इंटरडिसिप्लिनरी, बट वंस योर टॉपिक गेट फाइनल, आपको वो टॉपिक भी स्पेसिफाई करना है। ओके मैम। हाँ बोलो मैम, जब पैर के नेम्स लिखने हैं वो भी शाम तक लिख देना। हेलो मैम। हाँ, आज शाम तक लिख दो। हाँ बोलो मैम, जिनका अकाउंटिंग और कॉमर्स पेडागोलॉजी सब्जेक्ट है, उनको क्या सिलेक्शन करना रहेगा? मैथमेटिक्स है बेटा, मैथ्स वालों का ऐसा है, पाठक सर wants them to do on mathematics topics only, so we are giving this kind of thing, so they have to select from mathematics। जिनका मेजर मैथ्स है उनके लिए तो कंपलसरी है, जिनका माइनर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उन लोगों को आपको साइंस मैथ्स जिसमें से लेना है वो ले लीजिए। बाकी आप अगर इंटरडिसिप्लिनरी भी करना चाहते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऊपर वाले टॉपिक्स तो कवर होने हैं, सबको लेना ही है किसी न किसी को, तो ठीक है। बट मैम, कंपलसरी नहीं है ना कि हमें हमारे पेडागोजी के हिसाब से ही सिलेक्शन करना है, अदर देन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स? नहीं,
ओके मैम, तो मतलब अकाउंट और कॉमर्स वाले भी मैथ्स ले सकते हैं, राइट ना मैम? हाँ ले सकते हो। ओके मैम, ठीक है। मैं मैम लेकिन कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेने हो तो सॉरी कॉमर्स या अकाउंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेने हो तो सकते हैं मैम? नहीं, अभी ये जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट में लास्ट वाला टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी। उसमें आप कॉमर्स अकाउंट के टॉपिक्स लेके आप उसको इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से डील कर सकते हो। ओके मैम। वही पूछ रहे थे ना? हाँ मैम। ओके ओके। मैम ये जो मैथमेटिक्स में गॉस है उसमें हमें डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में ही लिखना है? मींस गॉस फिजिक्स में भी यूज होता है? के लिए है ना पाठक सर, आप वंस यू विल गिव मी योर नेम्स, पाठक सर विल डू दैट थिंग कि एक ग्रुप बना के एक दिन वो आपको छोटे ग्रुप में थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे आप ये लिखोगे। सो दो स्टूडेंट्स हु विल बी सिलेक्टिंग मैथ्स, उनको सर या किसी दिन क्लास में भी बता देंगे, यहाँ पे यूडीएस के क्लास में भी, कि 5 मिनट आके वो बता देंगे कि क्या एग्जैक्टली आप चाहते हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हो डायरेक्टली, है ना? ओके मैम। ओके मैम। पर ही सेड कि मैं एक छोटा मीटिंग लेके इनको समझा दूंगा। सॉरी। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ मैम, आई हैव वन। ओके, वन बाय वन बोलो, वन बाय वन। चलो मैम मेरा नाम सोनल है। हाँ सोनल बोलो। 29 वाला मुझे टॉपिक करना है, पर आपने वो चैट बॉक्स वाला बताया ना, वो क्या कौन सा नाम लिखना है कुछ पता नहीं चला। ये यहाँ पे जो लिंक है ना, अभी ये लिंक को मैं अपनी चैनल में भी डाल रही हूँ। अभी इस लिंक को क्लिक करने से आप अंदर जाओगे, वहां जाके आपको जहां 29 नंबर का नंबर दिख रहा है, अभी दिखाती हूँ मैं तुमको। यहाँ पे देखो, ये रहा 29, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी कोई लिख रहा है, देखो। और उसके साथ तुम अपना नाम बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? सोनल। सोनल। सोनल आगे पीछे। सोनल ZAN ZAN RUKIA। ओके, हो गया तुम्हारा नाम बस? थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ मैम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, तो अगर मैं इंटरडिसिप्लिनरी चूज करती हूँ, तो अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि मैम ने बताया, अगर मैं वो सब्जेक्ट मतलब टॉपिक लूँ, तो मुझे दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी उसे मतलब सब टॉपिक के साथ भी उसे कंपेयर करना है? देखो, तुमको सिलेक्ट करना है 11 साइंस में, स्कूल में पढ़ाने भी जाना है when you will go for your internship, fine. So you select the topic in such a manner that it will help you in your future also when you go to school. So you select the topic from that perspective also, that suppose if I talk about Jainam, please beta. So if I talk about some simple topic, say for example शेयर्स वाला टॉपिक होता है आपका, तो वेयर व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स आर देयर, देन जॉइंट फैमिली सिस्टम, और ऐसा भी कुछ होता है ना वहां पे। ट्रेड की अगर हम बात करें, कॉमर्स की बात करें, यस मैम। select such topic and then relate it with the family values. You can relate it with the financial risk, you can relate it with the economical this thing. So like that, you know, you have to take one topic from the textbook, 11th standard, 12th standard, and then that topic is can be dealt with multidisciplinary. जरूरी नहीं है कि सभी डिसिप्लिन के साथ उसको कनेक्ट कर पाओ, पर जितने ज्यादा डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव आप दे सकते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है? ओके मैम। मैम, अदर देन मैथ्स, एसएस और साइंस भी हम दे सकते हैं ना? हाँ, आपको देना एक ही है, पर एक ही सब्जेक्ट के साथ देना है, रिलेशन बताना है। से फॉर एग्जांपल एसएस, तो एसएस के साथ ही रिलेशन बताना है।
नहीं, मैंने शायद क्वेश्चन गलत समझा। मुझे लगा कि आप मैथ्स का टॉपिक भी लेना चाहते हो और दूसरा टॉपिक भी, 2 असाइनमेंट करना नहीं चाहते हो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं मैम, वो तो Now समझ I गए, get बट मैम it. Yes, हाँ you can link it with maths, you can link it with statistics, you can link it with sociology, you can link it with ओके मैम। history, और whatever. मैम डोंट यू थिंक सो अगर इंटरडिसिप्लिनरी वाला टॉपिक नहीं होता तो अकाउंट और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को क्या टॉपिक लेना चाहिए होता? Account Yes, and ma'am. commerce, they are not Same discipline. They are subjects. We are dealing with the हाँ तो फिर मैम, so it comes हाँ in ये social सब science only. सोशल साइंस में आएगा? मैम कॉमर्स डिसिप्लिन नहीं है No, it is not yet established मैम itself कॉमर्स। as discipline. Hello, ma'am. Hello, ma'am. I have a doubt regarding selection of the topic. Is that I wanted to choose the topic number 20, but as I'm writing my name, but I'm not able to paste it. So how could I do it? 20 में क्या नाम है तुम्हारा? Ma'am, Karishma Shukla. हो गया है तुम्हारा नाम, ऑलरेडी लिखा हुआ है। Yeah, okay. Thank you, ma'am. Actually, I was not able to see that. मैंने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा। किसने लिखा मुझे नहीं पता। तुम्हारे ma'am. ने किसी हेलो मैम। Okay, हेलो। thank you, ma'am. हाँ मैम, एक Ma'am, I ही am on पॉइंट पे 2 Wednesday. पेयर हो सकती है ना? नहीं समझ आया। मतलब कि 2 जन ने एक पॉइंट चूज कर लिया तो दूसरे 2 जन भी वो चूज कर सकते हैं ना, वही टॉपिक? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? हाँ, 36 के में कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू मैम। मुझे लगता है हेलो आप लोगों को ना अभी क्लास के लिए तो हेलो जाना मैम। चाहिए। हाँ बोलो। मैम मेरा नाम ग्रीष्मा पटेल है, मुझे 18 में अपना नाम लिखना है लेकिन मैं लिख नहीं पा रही हूँ। ग्रीष्मा, एक काम करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, आपका क्लास कितने बजे खत्म होगा? मैम 2:30 या 2:45 तक। हाँ, फिर तो आज मैम तो नहीं। 2:45। एक्चुअली 3 to 5 हमारा वो भी है आज से, तो हमारा सेकेंड ईयर वालों के साथ वो शुरू हो रहा है। जिनको भी दिक्कत आती है ना, दे कैन व्हाट वी विल डू, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि मैडम हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आफ्टर माय सिमुलेशन गेट्स ओवर 5 o'clock आई विल असिस्ट यू। और आपके जो फ्रेंड्स को मास्टरी है उनकी हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट सबमिशन डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती क्या? सबमिशन डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैम उस डेट पे काफी मतलब एक और असाइनमेंट सबमिट करना है और अभी 12 जन को भी एक 2 करना दिन है। आगे कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम आगे कर दें 2 दिन। मैम 1 वीक आगे कर सकते हो क्या? आगे मतलब पहले हाँ, ले मैम। लेंगे ऐसा? नहीं मैम क्या इट इज अ गुड आइडिया ना। अगर क्लैश हो रहा है तो वी कैन टेक दिस वे, पहले ले लेते हैं। मैम क्लैश की बात नहीं, हम लोगों को टाइम मिले ना मैम, ज्यादा थोड़ा कम होगा मैम, हाँ, इसीलिए। अच्छा इसलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ना सबको अभी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज आपका दूसरा क्लास है। हाँ, डांट पड़ेगी मुझे वहां से, है ना? सो मैम नंबर ऑफ पेजेस का कुछ है मैम रिपोर्ट? नहीं लिखा है मतलब नहीं है स्पेसिफिक। ओके मैम, ओके मैम। हाँ बोलो। मैम small doubt, ma'am. My name is Kalyani. I also want to take that 18th topic, development of science in ancient period. हो गया अभी पति गયું, હવે પતી ગયું, હવે જાઓ બીજા ટોપિક માં લાવો। Ma'am, Ma'am, one chemist. last question. Am I restricted to take science subjects only? Like science में जितना टॉपिक है वही लेना? मैंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आई डोंट बिलीव कि मैं अगर साइंस वाली हूँ तो मुझे साइंस ही करना चाहिए, है ना? स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। अगर आपका क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद आप ऑलरेडी 43। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी मैं एंड करती हूँ तो सारे बाहर निकल जाएंगे, तो वो चिंता मत कर दो। आई एम एंडिंग द मीटिंग, सो ऑल ऑफ देम विल बी आउट। चलो बाय। आपके डाउट्स आप मुझे वो ग्रुप में डालो, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। ओके, हेलो मैम।